Hello. Hello, sir. Yes. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. So Friday, Saturday, Sunday 3 छुट्टी के बाद मंडे को हमारी क्लास है आज। तो क्या क्या प्रैक्टिस की? सर फॉर्मूला जो आपने दिखाई थी वो किया वो और किया। पास ओके, राइट। तो आपने जो प्रैक्टिस किया, आपने प्रैक्टिस की, उसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके, गुड, राइट। हम्म, फिर ऐसा तो नहीं है ना, प्रैक्टिस भी नहीं की और कोई दिक्कत भी नहीं? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है ऐसा सर। नहीं है ना? हाँ। नहीं, मैंने थोड़ा अलग किया था, वो दिखा शेयरिंग करने वाला था, लेकिन लाइट नहीं है तो शेयर नहीं कर सकता मैं अभी। अच्छा, ओके। हाँ सर। ओके, गुड। So let us start with functions. ओके सर। तो आप लोगों को शुरू शुरू में शायद मैंने फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसकी बात की थी, इफ यू रिमेम्बर। फॉर्मूला यस जो होती है ना, फॉर्मूला जो होती है वो हम कस्टमाइज करते बनाते हैं, और फंक्शंस जो होता है ना वो एक्सेल में रेडीली अवेलेबल होता है। यस सर। अगर हमें कुछ 3 4 सेल की एंट्रीज जो है उसको ऐड करना है, तो हम इक्वल टू करके वो सेल प्लस अनदर सेल ऐसे करके करते थे। और एक्सेल में फंक्शन होता है उसके लिए, सम करके, SUM। तो अगर हम यस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सम करने का काम कर देता है, ऐड करने का काम करता है। तो एक्सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉमन फंक्शंस है जो हम बहुत क्विकली यूज कर सकते हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यस ऐसे बहुत सारे फंक्शन। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये सारे फंक्शन जो मैंने बताए उसको हम कैसे यूज करें। ओके सर। Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Functions are a great time-saving option for calculating data in your worksheet. They can be used in place of formulas when a formula would be too long or just too complicated to write out manually. To access the function library, go to the Formulas tab on the ribbon. Here you'll find hundreds of functions to choose from. They've all been organized into categories to make them easier to find. For example, under Financial, you'll find functions that deal with things like interest and monthly payments. Under Text, you can perform text manipulations, like converting lowercase to uppercase, replacing text, and more. Date and Time includes functions that return the current date, time, day of the week, and other useful data. Some of the most common functions are pretty simple though, like sum and average. You can access these using the drop-down arrow under AutoSum. In this example, I'd like to add these 10 cells to calculate the total. If I tried to create a formula for that, I'd have to add each cell individually. Not only would that be tedious, it would also make the formula really long, especially if I had, say, 100 cells that I wanted to add. So instead of creating a formula, I'm going to use a function. First, select the cell where you want the answer to appear. Then choose a function. In our case, we'll open the AutoSum menu, and then choose Sum.
Now Excel has inserted the function and also selected the cells that are being added together. If it selects the wrong cells, you can always change that by dragging the corner handles here. When you're done, press Enter on your keyboard, and the answer will appear. Let's look at this function in a little more detail. Just like formulas, functions always start with an equal sign. But you may have noticed that there are no mathematical operators, such as addition or subtraction, like you would normally see in a formula. Instead, functions use a specific syntax that includes the name of the function, followed by one or more arguments in parentheses. The arguments tell the function which cells or numbers to use when calculating the result. In this example, we only have one argument, even though there are two different cell references. This is called a range of cells, or a cell range. A cell range is represented by two different cell references with a colon in between. In this case, the range consists of all the cells between D3 and D12. If you want to use more than one argument, you'll need to separate each one with a comma. ओके, ये वीडियो आगे भी है, लेकिन मैंने पॉज इसलिए किया क्योंकि आपको दो चीज पता, आपको डिफरेंस पता चला फंक्शन और फॉर्मूला की। यहाँ पे D3 से लेके D12 के जो सेल्स है उनको उनको ऐड करना। तो पहले हम कैसे करते थे, D3 इक्वल टू करके D3 प्लस D4 ऐसे करके करते थे, जबकि सम के अंदर D3 देन देयर इज ए कोलन एंड देन D12, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन साइन, एरिथमेटिक ऑपरेशन का कोई साइन नहीं है। सेकंड थिंग कि ये D3 से D12 तक के सेल ऐड करने, लेकिन आपको लगता है कि मुझे और भी कोई सेल है जिसको भी ये सम के अंदर ऐड करके दिखाना, देन यू जस्ट पुट कॉमा एंड सिलेक्ट अनदर रेंज। वो जो रेंज है वो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से आप सम कर सकते हो फंक्शन का यूज करके। Let's try a different function now. In this example, we have a column for the date that each item was ordered and the date that it was received. What I'd like to know is how many business days it took for each item to be delivered. First, select the cell where you want the function to go. Then choose a function if you know what category it's in. If you don't, you can try searching for it instead. Just click the Insert Function command on the far left of the ribbon. Searching for functions can be tricky, but for more experienced users, this can be an extremely useful tool. Just type a description of the function you're looking for. I'm looking for something that'll count the number of days that have elapsed, so I'll type count days and then press enter. We've gotten a lot of different results here. To learn more about a function, just click the name, and a description will appear below. The function called net workdays returns the number of workdays between two dates, and that's exactly what we want. So I'm just going to click OK, and another dialog box will appear. There will be separate fields for each argument in the function. This function has up to 3 arguments: start date, end date, and holidays. When you click a field, you'll see a description of it below. And if you need more help, you can click the link that says Help on this function. For the start date, I'm going to select cell E3. And for the end date, I'll select F3. We know the holidays argument is optional because it's not in bold, so I'm going to leave that one blank. Before you continue, you can check the result of the function here. When you're ready, click OK, and the function will be added to the worksheet. Just like with formulas, you can copy the function using the fill handle here. And now we can see the number of business days it took for each item to be delivered. If you've never used functions before, the syntax may seem a little strange at first. But with some practice, you're bound to get the hang of it, and soon you'll be using your favorite functions over and over. ओके, सो मैंने आप लोगों को मैसेज में लिखा था कि आज के सेशन में मैंने एक
एक्सेल फाइल रखिए। आई होप आप सबने उसको डाउनलोड करके रखा होगा। सबने किया है वो फाइल डाउनलोड आज के सेशन से? सर अगर मिली नहीं सर, सर नहीं मिली। अगर नहीं किया है तो अभी आप पोर्टल पे जाइए, आज के सेशन में जाइए और वहां पे फाइल। मिनट पहले वहां पे नहीं था सर फाइल। क्या 2 मिनट पहले वहां पे देर वॉज नो अटैचमेंट ओके? टू द सेशन। हाँ, ऐसा फाइल तो अभी भी नहीं दिख रही है सर। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कल या परसों अटैच करके रखा हुआ है। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं लॉग इन करता हूँ पोर्टल पे। नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं है तो मैं अभी वापस रखूंगा उसको। मैं क्या करता हूँ आपके सामने शेयर करता हूँ पहले भी। फाइल तो है, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पोर्टल का मेरा स्क्रीन है, मेरे मुझे ऐसे दिखेगा। ये आज की डेट आप लोग दिख रही है, ये 24, तो 24 डेट का जो सेशन है उसका नाम मैंने रखा है फंक्शंस एंड फॉर्मूला पार्ट 6 है। ठीक है, इसका इतना डिस्क्रिप्शन रखा है, ऑनलाइन सेशन की लिंक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो सिलेक्ट फाइल के बाजू में जो एरो है ना, ये अटैचमेंट डाउनलोड करने का है। आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो तुरंत ये मैसेज आ गया, मुझे ये विंडो आ गई सेव एज। ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल है, इसलिए उसने ब्रैकेट में 1 लगा दिया। ओके, इसका मतलब है, तो आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करो, ऑलरेडी है। सर यहाँ पे सेशन डिस्क्रिप्शन के बाद सीधे नीचे बैक टू सेशन लिस्टिंग लिख के है। यहाँ लिखा है, शेयर करो आपका स्क्रीन। ओके सर। इसको ऊपर करो जरा, एकदम ऊपर टॉप पे। ये आज का सेशन है, ठीक है। अभी नीचे जाइए, यहीं पे कहीं पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है सर, इससे पहले जब वो 2 फाइल थी तब थे, अटैचमेंट लिख के था, लेकिन अभी नहीं है। नहीं है सर, मेरे इसमें भी नहीं है। एक काम कीजिए, बैक एक सेकंड है, होल्ड ऑन। आप ये डैशबोर्ड पे आ गए ना? यस सर। आज के सेशन में कहाँ से जाना है? यही ये जो दिख रहा है वही है ना? जी सर, ये है ना सेशन लिंक। ये और सेशन अगर लिंक है। डिटेल्स में भी जाते हैं तो हाँ, उधर ही। ये डिटेल वाला है ना। बैक एक बार और बैक करो। बैक सर। हाँ, बैक। मुझे देखना है कि और कहीं पे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन है कि नहीं। नहीं, यही होना तो यहीं पे चाहिए। यस सर। ये कोर्स आपका है, राइट? और कोई डिटेल है कोर्स में?
ये तो सेशन लिंक है, मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेशन में ज्वाइन हो गए, ठीक है ना। यस सर, वहां पे ज्वाइन हो गए अभी। ये सेशन नेम जो लिखा है वहां पे माउस ओवर करो तो सेशन नेम फंक्शंस एंड फॉर्मूला पार्ट 6 लिखा है ना उधर। यस अच्छा, ये तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा, कोई यस। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एक बार वापस जाओ व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स पे किया क्लिक? यस सर। आया नहीं, लेकिन स्क्रीन चेंज हाँ अब हुआ। सेशन तो नहीं है। सर, यही ही है। एक काम करता हूँ मैं फिर से इसको अटैच करता हूँ फाइल को। आप इसको अभी बंद कर दीजिए शेयरिंग। ओके। तो जब मैंने मैसेज लिखा था तो आप में से किसी को मुझे रिप्लाई करना चाहिए ना कि नहीं दिख रहा है फाइल, तो मैं कर लेता ना दिन में टाइम निकाल के वापस एक बार। सॉरी सर, मैंने देखा था। ब्राउज करके वापस इसको अटैच करता हूँ। अब आप सर अपने पे दिखाइए ना, फिर हम करेंगे खुद। हाँ, एक मिनट में पहले अटैच तो कर लूँ। आप लोगों को काम करने के लिए डाउनलोड तो करना पड़ेगा इसको। ओके, मैं इसको वापस सेव करता हूँ सेशन को। राइट, अब आप एक बार फिर से ट्राई करो। ओके सर। वैसे ही है सर। नहीं दिख रहा है रिफ्रेश डाउनलोड बैक ऑप्शन। नहीं सर। और किसी को आता नहीं है है क्या? सर, नहीं दिख रहा है सर। और किसी को भी नहीं दिख रहा है? नो सर। परमेश्वर आपको भी नहीं, बरखा को भी नहीं दिख रहा है? नो किसी को नहीं सर। दिख रहा है? मैंने अटैच किया, फाइल दिखाता है, और मेरे यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ग्रीन कलर का ऑप्शन भी आता है अटैच किया फाइल इसलिए। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं चैट बॉक्स में फाइल डालता हूँ। ओके सर। अच्छा, ये अभी मुझे बता रहा है गूगल ड्राइव में कैसे करना पड़ेगा। ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा मेरे लिए अभी। कंप्यूटर कंप्यूटर का ड्राइव जो है ना वो एक्सेस नहीं कर रहा है। मैं ड्रॉप करके ट्राई करता हूँ। सर ग्रुप पे डाल के नहीं होगा क्या सर? ग्रुप में हो व्हाट्सएप सकता पे? है, लेकिन हाँ, टाइम लगेगा उसमें। ओके। मुझे दो दो चार स्टेप्स करने पड़ेंगे तब जाके होगा। सर अभी आप दिखा दीजिए, हम लोग बाद में करते हैं ना फिर। लेकिन बाद में भी तो फाइल तो जरूर पड़ेगी ना आप लोगों को। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अटैचमेंट में क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, ड्रॉप तो हो ही नहीं सकता है। सर अभी आप दिखा दीजिए, बाद में नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, ऐसा कीजिए। ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा दुविधा में फंस गया कि ऐसा क्यों है। नहीं तो ये मुझे ऐसे तो रोज के एक दो फाइल डालनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। और पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो बहुत ही कन्वीनियंट है।
सी मुझे दिखाने से कोई ये नहीं है, मैं हर बार आपको दिखाता हूँ, लेकिन दिखाने के बाद आप लोगों को अभी का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे और आपको वापस 1 आवर का ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो वो आपके लिए भी टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक 1 आवर एक और करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना लाइन टोटल लिखा है, बेसिकली ये जो एक्सेल सीट है ये फूड सर्विस सप्लाईज की है, और यहाँ पे ये साइड पे जो फूड आइटम्स है उसके नाम लिखे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, लाइन टोटल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो मैंने क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन है, B3 मल्टीप्लाई C3, तो B3 मल्टीप्लाई C3 का मतलब हुआ ये B3 और ये C3 को मल्टीप्लाई किया तो ये लाइन टोटल आया। यस सर। ठीक उसी तरह से सारे लाइन टोटल के सेल्स है ना, वो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे ऑर्डर 12 अक्टूबर की डेट है और रिसीव्ड 15 अक्टूबर है, तो इन ट्रांजिट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको कितना दिन लगा डिलीवरी करने में। ओके, तो जैसे आपने स्क्रीन पे सॉरी वीडियो में देखा था, फॉर्मूलाज आपको लगानी तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला, ये इंसर्ट फंक्शन है इसके बारे में भी देखेंगे, यहाँ पे ऑटो सम है, ये वाला जो है रिसेंटली यूज्ड फंक्शन का बता रहा है, ये फाइनेंशियल फंक्शन से सारे। इसके बाद ये सारे फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है, इफ कैसे यूज करना है, इफ एरर कैसे यूज करना है, एंड देन फॉल्स, ये सारे लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन, देन डेट एंड टाइम के फंक्शंस, ये लुकअप एंड रेफरेंस के सारे फंक्शंस है, इसमें हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप करेंगे आगे चल के। ये है मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस है। उसके बाद ये मोर फंक्शंस करके लिखा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, जब मैंने स्टैटिस्टिकल पे गया एरो करके तो इतने सारे स्टैट के फंक्शन है, जो लोग स्टैटिस्टिक्स जानते हैं वो लोग ये फंक्शन का यूज करके अच्छे से काम कर सकते हैं कॉमर्स में। फिर ये इंजीनियरिंग के फंक्शन है। उसके बाद क्यूब, देन इंफॉर्मेशन के भी फंक्शन। तो कुल मिला के देर आर मोर देन 400 functions in Microsoft Excel, the version that I am having। ये फंक्शन जो है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का है। इंसर्ट फंक्शन अभी देखो, जैसे ही मैंने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया। ऐसा इसलिए हो क्योंकि ये दिस इज द Selected। लेटेस्ट सिलेक्टेड एंड एक्टिव सेल है। इस अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सम चाहिए, तो मैंने टोटल के बाजू में यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया, इंसर्ट फंक्शन में जा रहा हूँ। इंसर्ट फंक्शन में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है। यहाँ पे सर्च फॉर ए फंक्शन, आपको अपने हिसाब से जो फंक्शन चाहिए वो सर्च करने का यहाँ पे ऑप्शन है। अभी आपको मालूम नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास मुझे जो काम करना है वो फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, टाइप करोगे कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू ऐड और एंटर किया, तो मैंने आई वॉन्ट टू ऐड किया। यहाँ पे उसने बोला प्लीज रिफ्रेश योर क्वेश्चन, तो मैं इसको लिखता हूँ हाउ टू ऐड सेल्स। तो यहाँ पे डी सम और सम इफ आए, अब दोनों का मीनिंग देखते हैं। डी सम क्या करेगा, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फिर ये सम इफ एड्स द सेल
specified by a given condition or criteria. सम इफ कब काम में आएगा? आपको पहले रेंज सिलेक्ट करनी, ये काम में आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा. फिर क्राइटेरिया, देन सम एंड देन रेंज, राइट. अगर हम इस फॉर्मूला में जाएंगे तो ओके करूंगा तो आपको डिटेल में इस तरह से मिलेगा. पहले आप रेंज सिलेक्ट करो, फिर आप क्राइटेरिया डिसाइड करो, और ये सम रेंज है वो ऑप्शनल है, उसकी जरूरत नहीं है. और आप ओके करोगे तो वो सम करेगा तभी जब आपके क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया डाला अगर वो क्राइटेरिया में फिट होता है तब भी वो सम करेगा. दैट इज सम इफ. ओके, अभी मुझे लिखना है यहाँ पे ऐड. तो जब मैंने रेंज ऐड ऑफ लिखा सेल्स। तो यहाँ पे सम करके एक फंक्शन है. सम का मतलब हुआ नंबर 1 नंबर 2 और जितने भी नंबर्स आगे हो. एड ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स. ओके, यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला का एक और मेन्यू आ गया. फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे नंबर 1 D3 से D12. उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, जहां पे मैंने सेल को एक्टिव किया था उसके ऊपर उसको जितनी भी वैल्यूज मिल गई वो सारे सिलेक्ट करके एक रेंज बना दी. D3 D12, D3 से लेके D12. और नंबर 2 जो है दैट इज ऑप्शनल. हाँ, अगर मुझे नंबर 2 में अगर कोई और सेल रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं कर सकता हूँ. नंबर 3 में भी अगर मेरे पास कोई और सेल रेंज अगर सिलेक्ट करना है. फिर नंबर 4, सी इट विल गो ऑन एंड ऑन लाइक दिस. आप जितना चाहे उतने रेंज सिलेक्ट करके सम कर सकते हो. जब वहां आप पे सर कॉमा करना है. वो अपने आप कर लेगा कॉमा, हमें करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कर लेगा. अभी हम फोकस करते हैं D3 और D12 के ऊपर. अब आप यहाँ पे देखोगे उसने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर के सारे सेल सिलेक्ट कर दिए जिसमें सिर्फ नंबर है. टेक्स्ट वाला नहीं सिलेक्ट किया उसने. लाइन टोटल जो हेडिंग है उसको नहीं लिया क्योंकि वो टेक्स्ट है, बाकी सारे नंबर्स है, इसलिए उसने वही सेल लिए. अब यहाँ पे आंसर भी उसने दे दिया इज इक्वल टू 765.29. और यहाँ पे फॉर्मूला रिजल्ट भी आप देख रहे हो नीचे, फॉर्मूला रिजल्ट $765.29. और यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये आंसर आ गया. Yes, sir. अब यहाँ पर टोटल आइटम ऑर्डर, हम इसको भी थोड़ा फिलअप कर लेते. टोटल आइटम ऑर्डर, तो टोटल आइटम कितनी ऑर्डर हुई अगर वो कैलकुलेट करना है तो कहाँ से होगा. आपके यहाँ पे जो सेल देख रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी वाला कॉलम, Yes. ये क्वांटिटी वाले कॉलम में हर आइटम की यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है. तो टोटल आइटम जैसे इसके 3 है, इसके 5 है, इसके 5 है, अगर हम इस सबको टोटल करेंगे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ये रखता हूँ. और दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूँ ऑटो सम में जाके. वो इंसर्ट फंक्शन में तो हमने सर्च किया, यहाँ पे करूंगा तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा ये सम. अभी देखो ये सम मैंने किया तो इसने ऊपर के ये सारे सेल्स सिलेक्ट कर. मुझे कहाँ तक चाहिए, 4 तक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से Drag. ड्रैग करके कम करता हूँ. यहाँ तक इतना मुझे चाहिए और एंटर. तो यहाँ पे टोटल 55 आइटम्स है. हम मोर एक्सपेंसिव आइटम बाद में करते हैं. एवरेज डेज इन ट्रांजिट देख लेते हैं. अब यहाँ पे डेज करते हैं. 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में कितने दिन है, इंक्लूडिंग जो ऑर्डर का डेट था वो भी इंक्लूड करना है, और 15 Receipt. अक्टूबर जो डेट पे रिसीव हुआ वो दोनों को इंक्लूड करना है. तो 12, 13, 14, 15 कुल मिला के 4 दिन. ये तो बहुत छोटा ड्यूरेशन है डेट का, तो हम मैन्युअली काउंट भी कर सकते हैं. अगर कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन है तो काउंटिंग में एरर आ सकते हैं मैन्युअली करने, तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं. यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ नहीं है. इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट डेज.
ये वाला जो काउंट है फर्स्ट, ये बता रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो ये थोड़ा अलग इसका पर्पस है। आप आपके एक्सेल शीट में सेल्स के अंदर एंट्री की है, कुछ सेल्स में नंबर है, कुछ सेल्स ब्लैंक है आपके, कुछ सेल्स में टेक्स्ट भी है, और आपको काउंट करना है जिस सेल में वैल्यू है। आपने पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी, और अगर ये काउंट का यूज करेंगे तो आपको वो मिलेगा, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जहाँ पे वैल्यूज है। वी आर इंटरेस्टेड इनटू दिस नेटवर्क डेज। सो नेटवर्क डेज मतलब स्टार्ट डेट देना है, एंड डेट देनी है, अगर कोई इस बीच में हॉलीडेज आती है तो, एंड दिस विल रिटर्न होल वर्क डेज बिटवीन 2 डेज। तब ये फॉर्मूला के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट, तो ये वाली स्टार्ट डेट, देन एंड डेट, यहाँ पे एंड डेट डाला। ओके, तो इसने काउंट करके कितना 4 डेज दे दिया आंसर फॉर्मूला का रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे हॉलीडे डालता हूँ, इसके लिए एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, हॉलीडे इज एन ऑप्शनल सेट ऑफ 1 or more serial date number to exclude from the working calendar, such as state and federal holidays and floating holidays। तो ये ऑप्शनल है, अगर मुझे हॉलीडेज काउंट करना है और वो सब्ट्रैक्ट करना है तो भी कर सकते हैं, या ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। मैं कैसे करूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, मेरे पास कोई रेंज यहाँ पे ऐसे नहीं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, हॉलीडेज के लिए वापस से 12 अक्टूबर लेता हूँ। तो आप रिजल्ट अब देखिए, रिजल्ट 4 की जगह पे 3 दिख रहा है आपको भी। यस सर। सब लोग मेरे साथ हो ना। यस सर। तो यहाँ पे ये डेट Yes, sir. हॉलीडे मैंने ऐड किया तो ये एक दिन कम हो गया। अगर मैं ये हॉलीडे में ये दोनों डेट डालता हूँ, मैंने ये रेंज सिलेक्ट की, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर दोनों सिलेक्ट किया, दोनों हॉलीडे वाले दिन है। ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऑर्डर डेट 12 है और रिसीव डेट 15 है, तो ऐसा होगा नहीं, जस्ट आपको ही दिखाने के लिए। तो इसने कितने कैसे किया, 4 - 2 करके 2 दे दिया। और यहाँ पर ओके। अब जैसे आपने वीडियो में देखा था, ये हैंडल को पकड़ के हम फिल कर देते, तो यहाँ पे ये डेज आ गए 4, 5, 3, ये डेज ऑफ इन ट्रांजिट के हो गए फॉर ईच आइटम। अब यहाँ पे एवरेज डेज इन ट्रांजिट, एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज करना है। ऑटो सम में जाएंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट ये रेंज ले ली, लेकिन हमें ये रेंज नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, नहीं ये तो हेल्प हो गया। अगर मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, चेंज करनी है, तो मैं ये वाली जो ब्रैकेट में जो रेंज है उसको मैंने सिलेक्ट किया। डिलीट करना है तो कर सकते, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्ट किया। ओके, G3 से लेके G12 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे एवरेज डेज इन ट्रांजिट 3.8 आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम डेज काउंट करने की, कौन सी आइटम है जहाँ पे मैक्सिमम डेज लगते हैं, तो ये मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन में इसने बाय डिफॉल्ट ये ले लिया, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं इसको। तो सिलेक्ट किया, एंटर, तो 5। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा 5 डेज है, और 5 डेज वाले कितने हैं, 1, 2, 2, 3। यस।
maximum days in transit, then minimum days in transit. यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट minimum days in transit, there are only two, and there is only one item. Okay, then most expensive item. आइटम Okay. अभी यूनिट प्राइस मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए जिससे मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम पता चले? मैक्सिमम वाली फॉर्मूला फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना. हम क्या करेंगे, ये यूनिट प्राइस वाली जो कॉलम है ना, वो पूरी यस रेंज सर सिलेक्ट करेंगे और मैक्स फॉर्मूला मैक्स फंक्शन लगाते, तो मैक्स फंक्शन लगाने से मैक्स पता चल जाएगा हमें. यस सर आई मीन So $28.69, that is the most expensive item. Is this correct? यस सर Yes, it is correct. Okay. फिर ये टोटल जो है, ये टोटल में हमने फंक्शन का यूज करके, सम फंक्शन का यूज करके D3:D12 सिलेक्ट किया था. अभी जस्ट आपको डेमो के लिए यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं एक और रेंज सिलेक्ट करूँगा, ये वाला G3:G12 और एंटर कर. तो ये इसने ये वाला भी यहाँ पे ऐड किया. हालांकि ये गलत है आपको दिखाने के लिए, हाँ, कि आप ऐसे मल्टीपल रेंजेस को सिलेक्ट करके सम कर सकते हो. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है इसलिए. So now you are able to know how to sum, how to average, how to find maximum, how to find minimum value, and how to find the number of days between two dates. मैंने आपको ऑटो सम का कोई शॉर्टकट वाला दिखाया था एक बार, एक्सेल टिप, इफ यू रिमेम्बर. ऑल्टर प्लस इक्वल टू करते हैं तो पता है ऑटो सम आ जाएगा. यस सर बाकी सबको याद नहीं आ रहा है क्या? ये वाला वीडियो फिर से देखा कीजिए. AutoSum is a fast, easy way to add up multiple values, and it can be used by anyone, even if you're a beginner at Excel. There is an AutoSum command on the Home tab, but I'm going to show you a keyboard shortcut that makes it even faster. First, select the cell where you want the sum to appear, and then on your keyboard press Alt equals. So I'm holding down the Alt key and pressing the equal sign. It will add a sum function to the cell, and it will also automatically select the adjacent cells to use in the sum function. All we have to do now is press enter, and our total will appear. The other way to use AutoSum is to select the values that you want to add. And when you use this method, Excel will put the total in the cell immediately after your selection. So we'll use our keyboard shortcut again, Alt equals, and there's our total.
So this keyboard shortcut makes things just a little bit faster, but if you use AutoSum a lot, those time savings are really going to add up. सेम एक्सेल शीट में ऑटोसम का मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये हमने फंक्शन लगाया, ये फंक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कीबोर्ड से ऑल्टर एंड इक्वल टू दोनों को साथ में प्रेस करूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका जो बताया वीडियो में, ये रेंज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी रेंज चाहिए एंड देन ऑल्टर इक्वल टू, सो डायरेक्ट आंसर आ गया। सी, दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप ऑल्टर इक्वल टू करते हो तो आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, और आप पहले से रेंज सिलेक्ट करते हो तो इमीडिएटली बिलो द रेंज वो उसको सम करके रख देगा ऑल्टर इक्वल टू करने से। जब आप इसको देखोगे फंक्शन कौन सा यूज किया, सेम फंक्शन यूज किया है, सम d3 d12, राइट। तो ऑल्टर प्लस इक्वल टू शॉर्टकट की। Yes. एक और फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। Okay, to insert function from the function library. So in the example below, we will use count a function to count the total number of items in the items column. Unlike count, count a can be used to tally cells that contain data of any kind, not just numerical data. Okay, so there is a difference between count and count a. जो काउंट फंक्शन है that will only count the numbers, numerical data, whereas count a unlikely numerical data, it count other type of data also. Alphabets. Yes, sir. Yeah. So उसके लिए कैसे करना है? You have to select the cell that will contain the function. In our example, we will select cell B17. So B17 is somewhere over here. Total items of. Now click the formula tab on the ribbon to access the function library. From the function library group, select the desired function category. In our example, we will choose more functions, then hover the mouse over the statistical. More function, then go to the statistical, and inside the statistical, you will find count a function. So if you look at the screen, statistical, and these are the functions in statistical. Select the desired function from the drop-down menu. In our example, we will select count A, which will count the number of cells in the items that columns are not empty. So very critical, very important explanation of the count A is it will count the number of cells in a range that are not empty. Okay, it will exclude all the empty cells. It will not count.
Okay, so how to call the function? Once you call the function count a, value 1, select the range A3 to A12. So where is A? It is here. Value counting. Value counting in the sense the name of the items. Okay. Then the answer is 10. Total items order. ओके, तो पहले हम ये फंक्शन को चेक करते हैं कैसे करना है। मैंने आपको एक बार जो करके दिखाया वो टोटल आइटम्स ऑर्डर किया था और वहां पे हमने सारे क्वांटिटी को सम किया था। ओके, सो यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और टोटल आइटम्स ऑर्डर जो ये पर्टिकुलर एक्सेल की सीट है वो डिमांड ये करती कि इसको काउंट करना है कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर टू बी ऑर्डर। ऑर्डर करने के लिए कितनी आइटम्स है, तो काउंट ये कैलकुलेट करना है। वी कैन गो टू द स्टैटिस्टिक्स, ये वाला है ना, मोर फंक्शंस पे जाना है, स्टैटिस्टिकल में जाना है और काउंट ए इधर। और अभी उसने कोई रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लिया है, हमें रेंज चेंज करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज A3 से A12। यहाँ पे आंसर आ गया 10। so formula result is 10. all the cells are with information, with textual information, and the count is saying 10. Clear सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क प्लेस तो हमने देख लिया और कोई फंक्शन पे तो ओके, वी आर गोइंग टू लुक अप, वी लुकअप और एच लुकअप हम आगे देखेंगे। ओके, तो आज के सेशन में इतने फंक्शंस आप आज सीखो। मेरे पास एक और वर्कशीट है, दैट इज फॉर चैलेंज एक्सरसाइज। तो मैं देखता हूँ कि कैसे आपको मैं चैलेंज एक्सरसाइज दे सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में दूँ या अटैचमेंट करके दूँ, मतलब ये पोर्टल पे। आप लोग एक बार कोई ट्राई करना फिर से पोर्टल पे करने का, पोर्टल से डाउनलोड करने का, होना तो चाहिए पोर्टल से। सर नहीं तो दिख तो नहीं रही है सर, लेकिन डबल में 2-3 बार अभी भी ट्राई किया सर मैंने। हाँ, एक्चुअली होना नहीं चाहिए क्योंकि पहले भी आपने किया हुआ है ना पोर्टल से डाउनलोड। हाँ किया था सर, पहले भी किए हाँ। थे, लेकिन अभी आज के सेशन का आपने कल कुछ शायद मैसेज डाला था, हम्म, तभी देखा था मैंने, तो भी नहीं था सर ये एक्सेल फाइल वहाँ पे। ये एक आध बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा ठीक है सर, ये वाला शीट। एक बार मैं लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके देखता हूँ सर। हाँ, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अभी हम सेशन कंप्लीट करते, अगर नहीं हो रहा है ना परमिशन तो आप ग्रुप में मैसेज मुझे डाल दीजिए, ठीक है। अभी भी हाँ सर, अभी मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया था सर, हाँ, तो भी नहीं तो आया वो सर। नहीं आया। ओके नहीं आया। नहीं। ओके, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे।
सर आप वर्कशीट भेजने वाले थे ना प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग फॉर्मूला के प्रैक्टिस के लिए, हाँ हाँ तो भेजेंगे तो अच्छा होगा सर प्रैक्टिस के लिए। हाँ। तो ये जो वर्कशीट के ये जो अलग अलग फॉर्मूला प्रैक्टिस करने हैं ना, इसी की हम्म। वर्कशीट मैंने अपलोड तो की थी, लेकिन पता नहीं दिख नहीं रही है पोर्टल पे। तो अच्छा। मैं उसको एक्सेल अपना जो ग्रुप है ना वहाँ पे रखूंगा, एक्सेल की फाइल। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। सर। ओके ओके सर। चलो कल मिलते हैं। ओके सर। बाय, थैंक यू। थैंक यू बाय सर। सर, गुड बाय। बाय सर, बाय थैंक यू। बाय।